Hi everyone, my name is Shiv Mehrotra and welcome to the market analysis video. Now this video is not for a particular date. It's a video for long-term investment where you have to just make your positions and sit and see your portfolio coming in green. But if your portfolio is not coming in green, you have to learn from that कि क्या reason था कि मेरा portfolio भी green में नहीं आया. So this video is based on long-term investment where जब market में इतना fall आने के बाद every investor tries to make their entry. And if you are a retail investor, आप intraday करते हो या आप swing पे positions बनाते हो, तो you don't have to get scared from this fall because we make our entries. We as जो हम अपनी positions बनाते हैं, हमारा फोकस होता है कि मार्केट हमें क्या बताता है एंड हम उसके बेसिस पे अपनी एंट्रीज बनाते हैं. बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई स्पेशली फोकस ऑन टू थिंग्स दैट आर बाइंग अ क्वालिटी स्टॉक and buying that quality stock on a particular level that I think कि market वहाँ से retrace कर सकता है. So this is the first stock, Reliance Industries, that where I have marked some levels and I would help you to know how you can make your entries. But before starting the video, I would request every one of you to comment and let me know that if you want more such videos, and also do subscribe the channel because there is a lot of content, valuable content coming to you, and I am posting regular ideas so that it becomes easy for you to pay more attention on the execution part. Okay, now I would request again every one of you to watch this video up till end because ये वीडियो एक वैल्यूएबल वीडियो होगी एक न्यू इन्वेस्टर के लिए या एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए या एक पर्सन जो इंट्रोडे करना चाहता है. he needs to learn from that. So starting off video with Reliance Industries on one day chart. Now हमने मार्केट में फॉल देखा, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में फॉल देखा कि मार्केट ने फॉल किया, फिर एक मार्केट वापस रिट्रेस करा अपने रेजिस्टेंस पे, फिर मार्केट ने अगेन फॉल करा. ये चीज मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझाई थी बट आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड अगेन बिकॉज नाउ देयर इज अ डिफरेंट scenario coming for us and we have to react. We have to adjust ourselves according to the market. Okay, मार्केट ने दोबारा रिट्रेस करा. now as I said कि हम गुड क्वालिटी स्टॉक्स बाय करना चाहेंगे और हम उन्हीं क्वालिटी स्टॉक्स को एक पर्टिकुलर लेवल पे बाय करना चाहेंगे. सो मेरा पहला स्टॉक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इफ ये 200 मूविंग एवरेज के पास आता है एंड इसके नियर टर्म वैल्यूज तो है वो है 2960 अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड राइट हियर 2250. So if अगर market plans a retracement near around it, I would be starting to make positions here because हमें भी पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसमें अपना पोजीशंस बनाना लॉन्ग टर्म विजन को देख के we have a good stock in our pocket and we have to keep such kind of stock if we want to beat inflation. Okay, so अगर इस वैल्यूज के अराउंड मार्केट आती है एंड मार्केट हमें एक ग्रीन कैंडल बनाती है जो एक ब्रेकआउट कैंडल भी होता है लाइक दिस, सपोज ऐसी कैंडल बनती है कुछ, अब देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट है, इस लेवल को ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम अपनी पोजीशंस बढ़ाएंगे एंड लीव आफ्टर दैट बिकॉज अगर मार्केट के बाद भी फॉल करता है तो वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, हम इसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी रख सकते हैं, तो हमें कोई वरी की बात नहीं है बिकॉज हमने ये स्टॉक एक गुड लेवल पे भी बाय किया था. So the levels to watch out for and please mark the levels because it would help you to make your entries easy. The first level is if it is giving a breakout from this level 2250 and up till 2274. And also the second levels are 2158 and 2188. The third levels are 2082 and 2118. तो ये लेवल्स है जहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो you have to start making your positions. The second stock that I have is Wipro. So if I show you on daily time frame, हमें Wipro में भी fall देखा है and Wipro is at its support. जहाँ पे भी Wipro अपना support दे रहा है and it is at 619.20. So there are chances कि market और fall दे and after that हम कहाँ पे buy करेंगे? If I come on line chart तो हम we would see कि market में pause का है, तो you can see right here कि market इस जगह पे पॉज करी है या एंड अगर मार्केट इस जगह पे पॉज करी है दैट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट वेयर वी कैन लुक टू बाय हियर. सो इफ आई जस्ट मार्क दिस एज अ बॉक्स, या
and come on back on candlestick chart. तो ये एक zone है 5 wait a minute, yeah, 586 and 604.65. So if in this zone we can see a green candle, a green bullish candle, from looking a green bullish candle, we would start making up positions. And if अगर market as I said 200 moving average एक important moving average होता है, तो एक ये level और है जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज अप्रोच कर रहा है एंड विद इन टाइम ये इसको क्रॉस भी करेगा. तो इफ एट 562 लेवल मार्केट इज गिविंग अ ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल एंड 200 मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लेता है, तो दिस इज द सेकंड स्टॉक जहाँ पे मैं अपने पोजीशंस बनाऊंगा, बिकॉज ये एक गुड लेवल स्टॉक है. विप्रो एक क्वालिटी स्टॉक है एज एवरीवन ऑफ अस नो, एंड this is considered in top Nifty 50 stocks too. Okay, so the first level that I have is 586.60 और 586 till 604. अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल दिखती है तो हम अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे एंड अपनी सेकंड पोजीशंस हम यहाँ पे बनाएंगे 562. Now why I am giving you two levels, because देखो मार्केट में हर बार ऐसा होता है, जब कोविड में फॉल आया था तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि मार्केट एक रिट्रेस करेगा, एक सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर हम बाय करेंगे. बट ऐसा नहीं हुआ था, मार्केट एक स्ट्रेच में भागा था. सो हम ये 2 लेवल 3 लेवल इसलिए बता रहे हैं ताकि तभी भी अगर इन लेवल्स पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, तो हमारी एंट्रीज चालू हो जाए, हमारी एंट्रीज बनना चालू हो जाए, हमारे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में डाल दें ताकि हमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो आना शुरू हो जाए. बिकॉज सी, अगर आप प्लान ही करते रह जाओगे ना और उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो प्लानिंग वेस्ट है. रिग्रेट इज द थिंग दैट वी इनटू स्टॉक मार्केट वी शुड मोर फोकस ऑन. हमें अपॉर्चुनिटी से जाना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि यार इसमें लॉस ना हो जाए या इसमें कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें हमें बाद में रिग्रेट हो. तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, एंटर, मेक योर पोजिशंस. The second stock that I have is Tata Motors. थर्ड स्टॉक सॉरी. तो टाटा मोटर्स ने बहुत टाइम एक इस जोन में कंसोलिडेट करा और अब उस समय 462.85 का लेवल ब्रेक करा. नाउ यहाँ पे एक गैप है. इफ यू रिमेम्बर कि मार्केट जब टाटा मोटर्स का अच्छा प्रॉफिट आया था तो टाटा मोटर्स गैप अप खुला था अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट्स. तो माय प्लान ऑफ एंट्री वुड बी, अगर टाटा मोटर्स 436.65 के लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आई वुड स्टार्ट टू मेक माय एंट्रीज. Otherwise, my other entry would be somewhere around here. That is at 360 का लेवल, जो हमारा 360 का लेवल है उसके अराउंड में अपनी एंट्रीज प्लान करूंगा. क्यों? बिकॉज टाटा मोटर का लॉन्ग टर्म विजन है, ई व्हीकल्स के साथ आ रहे हैं और अब ये देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज भी अप्रोच कर रहा है. तो 360 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जहाँ पे हम अपनी पोजिशन बनाएंगे. एंड देखो हमारा फर्स्ट लेवल तो 436 का होगा, बिकॉज यहाँ पे एक गैप है, एक पावर गैप है ये. तो मार्केट अपना आपको सपोर्ट देगा, यहाँ पे टाटा मोटर सपोर्ट लेगा और एक बुलिश बनाएगा, एक बुलिश वेव आएगी, फिर वापस नीचे आएगा. एक स्ट्रेच में मार्केट कभी नीचे नहीं आता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि मार्केट कभी एक स्ट्रेच में नीचे नहीं जाता है, बट देयर आर चांसेस कि मार्केट कभी एक बार एक स्ट्रेच में ऊपर चले जाए. सो फॉर दैट, लुकिंग इनटू एवरी पॉइंट की मार्केट हम लोग कैसे मूव्स दे सकते हैं, हमें अपने आप को एडजस्ट करना है. एंड वी हैव टू मेक आवर लेवल्स, वी हैव टू मेक आवर एंट्रीज अकॉर्डिंग टू दैट. एंड first of all, the most important thing that you have to follow is money management rule. आपको if you have a capital of 1 lakh, okay, then you have to manage. आपको अपना portfolio diversify करना है ताकि आपका risk भी diversify हो जाए. And these are the things that helps you to stay for long term into stock market. Okay, now these were the stock that I have for you. And if you want more such video, do comment and let me know for more stocks. And कौन सा stock में आप अपनी entry बनाने वाले हो वो भी मेरे को comment में बताओ. And also do not forget to subscribe to our channel because there are a lot of valuable things coming to you